Okay, students, in the last lecture, we have seen about the elementary reaction. Correct? What is elementary reaction? The reaction which occurs in a single step. The reaction which occurs in a single step and cannot be broken further into any simpler reaction are called as a elementary reaction. After elementary reaction here, molecularity of the reaction, but molecularity concept, अगर कोई रिएक्शन का हमें molecularity फाइंड आउट करना है तो molecularity फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन कंपल्सरी कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्री होना चाहिए. और अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा तो ही उस रिएक्शन का आप molecularity फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका वन मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन, तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर. हियर ये भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो one molecule of ethyl iodide, so it is unimolecular. Then ये भी हमारा how many molecule of the reactant? One ozone and one oxygen. One ozone and one oxygen, so bimolecular. Here also, this is also elementary reaction. Elementary reaction. So two molecule of NO2. Two molecule of NO2. So it is also going to be reaction, bimolecular reaction. Correct? ये हमारे एलिमेंट. तो अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बोल सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. मतलब अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा और अगर ये बाय मॉलिक्यूलर रहेगा, बाय मॉलिक्यूलर, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पावर 2. लेकिन अगर हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री है, यूनिमॉलिक्यूलर रहेगा तो पावर क्या लिख सकते हैं? 1. मतलब अगर आपको मालूम है रिएक्शन एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री के लिए आप उसका मॉलिक्यूलरिटी और उसका रेट लॉ लिख सकते हो. अगर आपको मालूम रहेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट लॉ लिख सकते हो. जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसका कोएफिशिएंट विल बी रिटन हियर एज अ पावर. अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर 1 नंबर 2 में अगर हो रहा है और स्टेप नंबर 1 अगर स्लो है तो अगर हमें रेट लॉ लिखना रहेगा तो रेट लॉ इज रिटन बाय यूजिंग विच स्टेप? स्लो स्टेप. देखो स्लो स्टेप में कौन रिएक्टेंट है? NO2Cl है. यहाँ पे भी क्या लिखा? NO2Cl लिखा. मतलब स्लोएस्ट स्टेप जो हमारे मैकेनिज्म में स्लो स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड्स द slow step in the reaction mechanism decides the rate of reaction. So it is called as the rate determining step. And last concept किया था कि जो substance, what is reaction intermediate? जो substance एक step में form होगा और दूसरे step में consume होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? reaction intermediate. Substance which is formed in the one step and consume in the next step of the mechanism are called as a intermediate. और ये intermediate हमें overall equation में दिखाई नहीं देता. यहाँ पे वो देखो Cl यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इधर Cl दिखाई नहीं दे रहा. overall equation में नहीं आता है. और दूसरा it does not appear in even in the rate law. हमारे rate law में भी कभी नहीं आएगा. देखो rate law में Cl कभी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा. करेक्ट? तो ये हमने एक theoretical part देखा था. आज इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. numerical page number 126, solved problem 6.7, page number 126, page number 126, solved problem 6.7. Okay, they have given here reaction occurs in
the following step. Reaction occurs in the following step. First, NO2 gas plus F2 gas gives you NO2F gas plus F gas, and this is a slow step. This is a slow step. Second, F gas plus NO gives you, अच्छा ब्लर दिसता है, एक मिनट, एक नेटवर्क बराबर नहीं, एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट. आता दिसतंय का रे क्लियर? ओके ओके, हाँ ठीक है. See here, so again I'll repeat. A reaction occurs in the following step. What is the reaction? NO2 in the gaseous state plus fluorine in the gaseous state gives you NO2F plus fluorine. It is a very slow reaction. Second step, F plus NO2 gives you NO2F in the gaseous state, and it is fast step. It is a fast step. Correct. Now, what is the question they have asked us here? See, what is the question they have asked us here? Here we'll directly show the question. They have said write the equation of overall reaction. Overall equation. Overall का मतलब क्या? तो दोनों equation को add करो. तो मैं दोनों को add करूंगा. Add करने के बाद देखो यहाँ पे F first step में form हो रहा है और second step में consume हो रहा है. तो F क्या रहेगा? Reaction intermediate. F क्या रहेगा? Reaction intermediate, because it is getting form in the first step and it is used in the second step. So F cancel हो जाएगा. So what is here? NO2 and NO2. So we get 2 NO2 plus F2 will gives you 2 NO2F. This is overall reaction. This is overall reaction. ये हमारा overall reaction है. Correct? देखो सबसे पहले पूछा था कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल मतलब दोनों को ऐड करो. तो दोनों को ऐड करते समय क्या होगा? एफ एंड एफ विल गेट कैंसिल. अभी सेकंड क्या बोला है यहाँ पे? राइट डाउन द रेट लॉ. अगर रेट लॉ मुझे लिखना है तो यहाँ पे देखो ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी एलिमेंट्री, दोनों एलिमेंट्री है. दोनों अगर एलिमेंट्री है लेकिन मुझे रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ लिखने के लिए कौन सा स्टेप यूज करोगे? स्टेप 1 यूज करोगे कि स्टेप 2 यूज करोगे? बोलो. 1. क्यों 1 यूज करोगे? स्लो रिएक्शन है. Yes, because slow step decide the rate of the reaction. Slow मतलब अगर यहाँ पे मैं रेट लिखूंगा तो देखो ये हमारा स्लो स्टेप. yes, slow step is a rate determining step. correct. So B part, rate is K into, ये हमारा स्लो स्टेप है.
और स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट रहेगा उसे रेट लॉ में लिखना है। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, करेक्ट, ये हमारा रेट लॉ रहेगा। स्टेप 1 इज सिंस step 1 is slow, it is called as rate determining step. It is called as a rate determining step, correct? Then C question, they have asked for here reaction intermediate. रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? तो यहाँ पे देखो F फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है। F फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज F because it is produced in step 1 and consume in step 2. It is produced in step 1, फ्लोरीन step 1 में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, therefore it is called as a reaction intermediate, correct? तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। ओवरऑल इक्वेशन क्या था? हमारे इक्वेशन का रेट क्या लिखोगे और व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है अभी। नेक्स्ट ट्राई दिस, पेज नंबर 126। देखो वहां पे भी उन्होंने दिया है, फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप दिया हुआ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? NO gas plus O3 gas gives you NO3 gas plus O gas. NO3 gas plus O gas gives you NO2 gas प्लस O2 गैस। ये इक्वेशन है, करेक्ट? तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है, और सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रेडिक्टेड रेट लॉ। इसका इस इक्वेशन का रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ दिया हुआ है, लेकिन वो बाद में मैं करूंगा। दूसरा क्या बोला, आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आइडेंटिफाई करना है। राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन and which is the reaction intermediate and why। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। तो ऐड करने के बाद NO3 फॉर्म हो रहा है और NO3 कंज्यूम हो रहा है, करेक्ट? ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। मतलब NO3 and O are formed in the first step and consume in the second step। तो इनको क्या बोलोगे आप? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इनको ऐड करो, फिर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? NO plus O3 gives you NO2 plus O2। NO2 plus O2 is overall reaction। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन, करेक्ट? NO plus O3 gives you NO2 plus O2, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन। दोनों को ऐड करने के बाद अगर मुझे रिएक्शन इंटर में इसकी भी बात करते हैं हम लोग, ये हमारा ए आंसर हुआ। बी आंसर
रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन रहेगा? NO3 एंड O जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन आ जाएगा? NO3 and F. Why? Because NO3 and F, सर F की O, sorry, O. NO3 and F are, NO3 and O are produced in first step and consumed in next step. Therefore, they are reaction. Therefore, they are reaction intermediate. Therefore, they are reaction intermediate. Correct? तो ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हो गया. करेक्ट? रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया. कौन इंटरमीडिएट? NO3 and O. और अभी थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है, विल डू इट दैट. हॅलो सर. हाँ यस. सर ओव्हरऑल रिएक्शन कशी काढायची? दोन्ही इक्वेशनला ऍड करायचं. दोन्ही इक्वेशनला ऍड करायचे आणि जे काही कॉमन पॉइंट असतील ते कॅन्सल करायचे. कॉमन सबस्टन्स कॅन्सल करायचे. आता इथे काय होतं, या साईडला NO3 आहे, ऍरो नंतर आहे आणि हा ऍरोच्या आधी आहे, मग हा कॅन्सल होईल. इथे ऍरो नंतर O आहे आणि इथे ऍरोच्या आधी O आहे, मग O पण कॅन्सल होईल. मग उरलं काय? मग हे NO3 हा NO3 आणि हा NO3 कॅन्सल झाला, हा O आणि हा O पण कॅन्सल झाला. What is remaining here? NO and O3. NO and O3. What is remaining on the right hand side? NO2 and O2. NO2 and O2. ही आपली ओव्हरऑल इक्वेशन झालं. जो कॉमन पार्ट असेल तो कॅन्सल करायचा, त्याच्यानंतर जे उरेल ते आपली ओव्हरऑल रिएक्शन असेल. सर पहिला सम घेतला त्याचा दाखवा ना. फर्स्ट टर्म मध्ये बघा, फर्स्ट टर्म मध्ये काय होतं? NO2 F2 काय प्रोड्यूस करतो? NO2F आणि F प्रोड्यूस करतो. हा F आहे आणि मग इथे परत काय होतो? हा NO2 नवीन वेगळा आला, हा नवीन NO2 आला आणि प्लस F आहे ना, F मध्ये इथे F कॉमन आहे दोघांच्या मध्ये. पहिल्या स्टेप मध्ये F फॉर्म होतोय, सेकंड स्टेप मध्ये F काय होतो? युज होतोय, म्हणजे F कॅन्सल होईल. उरेल काय? NO2 आणि NO2, हा दोन NO2 आले आणि मग F2 उरेल. F2 इथे काय उरणार? NO2F आणि NO2F म्हणजे 2 NO2F. ही आपली कोणती रिएक्शन झाली? ओव्हरऑल रिएक्शन. ठीक आहे सर. कळलं का रे? हाँ सर. ओके, नाउ वी हैव टू से थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो. थर्ड पॉइंट, द प्रेडिक्टेड rate law is KNO into O3. देखो, see here. So therefore identify rate डिटरमाइनिंग स्टेप. देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी यहाँ पे उन्होंने रेट लॉ दिया हुआ है. अभी मुझे बोलो, नॉर्मली कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है? कौन से स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलोगे? स्लो स्टेप. स्लो स्टेप. और स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट रहेगा, उसे रेट लॉ में लिखना है. तो अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने? ऑलरेडी हमें रेट लॉ दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि NO एंड O3 कौन से स्टेप में रिएक्टेंट आ रहे. NO एंड O3 कौन से स्टेप में रिएक्टेंट आ रहे. तो देखो यहाँ पे NO एंड O3 कौन से स्टेप में आ रहे हैं एज अ रिएक्टेंट?
बोलो। फर्स्ट एनो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ रहा है ना एनो, तो इसलिए ये हमारा स्टेप स्लो होगा और ये हमारा स्टेप फास्ट होगा। मतलब अगर उन्होंने यहाँ पे स्लो लिखा होता तो ये रेट लॉ में आ जाता, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, इस सेकेंड सम में उन्होंने रेट लॉ दिया हुआ है, उन्होंने रेट लॉ दिया हुआ है और रेट लॉ से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेप स्लो है। तो रेट लॉ में क्या दिया है, KNO3, KNO3। तो हमें देखना है KNO3 कौन से रिएक्शन में आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में। तो NO3 आ रहे हैं, NO3 आ रहे हैं स्टेप 1 में। Therefore, step 1 is the rate determining step. So here, identify the rate determining step. The step 1 is rate step 1 is the rate determining step. It is slow step. It is slow step. And what is the step? देखो NO plus ozone gives you NO3 plus oxygen, और ये हमारा स्लो स्टेप है। okay? तो जो अगर मतलब अगर आपको स्लो स्टेप दिया रहेगा तो आप रेट लॉ लिख सकते हो, और अगर आपको रेट लॉ दिया रहेगा तो उससे आप स्लो स्टेप आइडेंटिफाई कर सकते हो। करेक्ट। स्टेप 1 is the rate determining step. It is a slow step of the mechanism. ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है क्या आपको? I will just do one more problem from exercise. Page number 136. Question number 3. In that 3. Exercise. Page number 136. Question number 3. Third. I'll just write down the reaction. A reaction taking place in 2 steps. Step 1, NO plus Cl2 gives you NoCl2. NO plus Cl2 gives you what? NoCl2. Step 1. Step 2, NoCl2 plus NO gives you 2NoCl. देखो, this is the first step. First step में क्या हो रहा है? NO plus Cl2 gives you NoCl2. और NoCl2 react with NO gives you what? NoCl. तो उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट A. ओके, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है? देखो, अभी फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें? राइट द ओवरऑल रिएक्शन, identify the reaction intermediate, and what is the molecularity of the each step. Write the overall reaction, identify the reaction intermediate, and what is the molecularity of the each step. Okay, और रेट लॉ हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो देखो, यहाँ पे NoCl2 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे NoCl2 कंज्यूम हो रहा है। NoCl2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? NO and NO. So 2NO plus Cl2. NO and NO will be 2NO. Cl2 gives you 2NoCl. देखो बैलेंस हो रहा है यहाँ पे भी 2NO Cl2 Cl2। तो ये हमारा रहा
overall reaction. Overall reaction. B, reaction इंटरमीडिएट. कौन इंटरमीडिएट है? देखो NOCl2 जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है, तो NOCl2 रिएक्शन इंटरमीडिएट. करेक्ट. सी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्टेप 1. देखो ये हमारा स्टेप 1 है. व्हाट इज, देखो स्टेप 1 के लिए पहले क्या मालूम होना चाहिए कि ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. यस, ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है. ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन. तो कितने मॉलिक्यूल है? 1 molecule of NO and 1 molecule of Cl2. 1 molecule of NO and 1 molecule of Cl2. So step 1 is bimolecular. And then molecularity of step 2. स्टेप 2 में क्या रिएक्ट हो रहा है? NOCl2 रिएक्ट हो रहा है और NO रिएक्ट हो रहा है. NOCl2 एंड NO रिएक्ट हो, तो स्टेप 2 भी क्या आएगा हमारा? बाइमोलिकुलर. देखो 3 क्वेश्चन पूछे थे. सबसे पहले क्या उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन. तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिला उससे क्या बोला? ओवरऑल इक्वेशन बोला. उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट. स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी. स्टेप 1 में कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है, तो बाइमोलिकुलर. स्टेप 2 में कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है, NOCl2 एंड NO. तो स्टेप 2 भी क्या आ जाएगा? बायोमोलिकुलर. करेक्ट. तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स, ये टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए. करेक्ट. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. Next heading is integrated rate law. The next heading is integrated rate law. Integrated rate law. Now what is integrated rate law? Here in the integrated rate law, what is we do? The differential rate law are converted into integrated laws. देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ रहेगा और डिफरेंशियल रेट लॉ में हमें किस में कन्वर्ट करना है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है. डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है. सेकेंड पॉइंट, integrated rate law gives relation between concentration of reactant and time.
ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें क्या बताता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ गिव रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और टाइम, इनके बीच में रिलेशन बताता है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल रेट लॉ रहेगा, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है। और दूसरा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताएगा? रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम। ये हमारा लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दे देगा। नाउ आई विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। Derivation, that is integrated rate law for first order reactions in solutions। देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें डिराइव करना है फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट रहेंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट रहेगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। सो कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उन्होंने बोला ही है कि हमें जो इक्वेशन डिराइव करना है, हमें जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो डिराइव करना है, वो किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसलिए कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा? ए gives you product। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए gives you product। और ए क्या रहेगा? ए विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ए डिसॉल्व इन वाटर और ए विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन रहेगा तो ही हम सॉल्यूशन का क्या मेजर कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। अगर ए हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो ही हम लोग ए का क्या मेजर कर सकते हैं? कॉन्सेंट। ए इज डिसॉल्व इन वाटर। व्हेन ए डिसॉल्व इन वाटर क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन मिलेगा तो उसका क्या मेजर कर सकते हो? आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो। और फिर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम के बीच में क्या लिख सकते हो? रिलेशन दे सकते हो। करेक्ट। तो कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए गिव्स यू द प्रोडक्ट। ओके, अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना है? द डिफरेंशियल रेट लॉ। Rate law is given by, the differential rate law is given by, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या आएगा? देखो, सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 1। वाई ए रेस टू 1? बिकॉज दे हैव सेड कि ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1। और रेट हम लोग ये एक रेट लिख सकते हैं, रेट के दूसरा और फॉर्म क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी को भी क्या बोलोगे आप? रेट ही बोलोगे। मतलब आइदर राइट इन द वर्ड एज अ रेट और यू राइट डाउन एज व्हाट? माइनस डी ए बाई डी टी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ये हमारा क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। ये हमारा है डिफरेंशियल रेट लॉ। दोनों मतलब रेट के फॉर्म में लिखो, और ये भी रेट ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन मतलब रिएक्टेंट है। एंड रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1, बट रेट कैन बी रिटन एज व्हाट? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। माइनस साइन मतलब कंजम्पशन, और कंजम्पशन क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अपॉन टाइम। तो ये हमारा, ये कौन सा इक्वेशन है?
डिफरेंशियल रेट लॉ, ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है, करेक्ट। अभी हमें डिफरेंशियल रेट लॉ को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ का मतलब क्या है कि हम लोगों ने रेट मेजर किया था बट एट स्मॉल टाइम इंटरवल। हम लोगों ने रेट मेजर किया था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया था बट एट स्मॉल टाइम इंटरवल। ऐसे हम लोग स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल पे रिएक्शन का रेट मेजर करेंगे और सारे स्टेप के जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे स्टेप को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहाँ पे यहाँ ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है। अब इनको रीअरेंज करेंगे। rearranging the above equation, तो रीअरेंज करने मतलब क्या करना है, माइनस डी ए या अपॉन ए मैं यहां लिखूंगा, ये मैं ए यहां पे लिखूंगा, इक्वल टू के इक्वल टू के डी टी। देखो माइनस डी ए अपॉन ए, मतलब यहाँ पे ए को मैंने यहाँ पे लेके गया और डी टी को यहाँ पे लेके आया। सेम इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, डी ए अपॉन ए, ये माइनस साइन मैं यहाँ पे लिखूंगा, माइनस के इंटू डी टी, माइनस के इंटू डी टी, करेक्ट। ये इक्वेशन हुआ। और स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ए इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड बिकॉज ए इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ए के लिए क्या मेजर करोगे उसका, ए के लिए उसका मेजर करोगे कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, ये हुआ। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ आ गया, तो विल जस्ट राइट डाउन हियर, we'll just write down here, let A0 be the initial concentration of the reactant at time. Let A0 be the initial concentration of the reactant at time. Initial concentration of the reactant A at time t equal to 0. मतलब जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया था, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 था। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तब हमारे ए का कॉन्सेंट्रेशन A0 था। एंड सपोज AT be the concentration of A at time t, मतलब हमारा इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन A0 था, और आफ्टर टी टाइम, मतलब टी मतलब आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन AT था। तो हम क्या करना है, हमें हमारे पास जो हमारा ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, हमारा जो हमारा ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, डिफरेंशियल रेट लॉ को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ
TA upon A between the limit A0 initial concentration, AT remaining concentration equal to minus K between time T equal to 0 और T और 0 टाइम 0 to T। देखो हम लोगों ने ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉल स्मॉल इंटरवल पे रेट मेजर करता था। अभी सारे स्मॉल स्मॉल इंटरवल को जो रेट मेजर किया था उसको ऐड करो, तो उसे क्या बोलना है, इंटीग्रेशन। तो टाइम 0 पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन A0 था और आफ्टर 5-10 मिनट्स हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 80 था। 80 का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी इंटीग्रेशन हो गया, तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन, सो ऑन इंटीग्रेशन, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। देन ऑन इंटीग्रेशन, जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद dx by x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x। देखो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज ln x, मतलब log x लिखते हो लेकिन यहाँ पे हमें ln लिखना है, तो ln a, ln का मतलब बेस e, ln का मतलब बेस e। इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a इज इक्वल टू ln a between the limit, the initial limit is A0 and final remaining concentration is 80 equal to minus K. Integration of dt is equal to T और integration of dx is equal to x। ये हमारे फॉर्मूला है। Integration of dx upon x is ln x and integration of the dx is equal to what, x. So integration of the dt will be what, T between the limit 0 to T. Okay, now we got the limit initial and substitute the values of final limit minus initial limit। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ln a की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे at minus ln a0, ln at minus ln a0 is equal to minus k and in the bracket we'll write what, t minus 0। in the bracket we'll write minus t minus 0। देखो फर्स्ट ln a के जगह हम लोगों ने कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फाइनल लिमिट का। बाद में यहाँ पे आ गया a0 का इज इक्वल टू माइनस के टाइम t माइनस 0। ओके, तो अभी ये कैसे लॉग a माइनस लॉग b आया, लॉग a माइनस लॉग b हम कैसे लिखेंगे, लॉग मतलब ln at अपॉन a0, log a minus log b, log a minus log b can be written as what, log a upon b, log a minus log b can be written as log a upon b equal to minus k t minus 0 मतलब t। okay, t minus 0 is equal to t। अभी मुझे क्या करना है, माइनस साइन कैंसिल करना है। तो माइनस साइन कैंसिल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ln x अपॉन y है और उससे मैं माइनस ln y अपॉन x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ln x अपॉन y प्लस था, तो जब रेसिप्रोकल लोगे ln y अपॉन x, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा, मतलब प्लस ln xy will change to minus ln y upon x। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो मैं लिखूंगा ln a0 अपॉन at और यहाँ पे उल्टा लिखा मैं रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस kt। अभी दोनों साइड ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बाद में यूज करना है, मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया और रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लस था विल चेंज टू व्हाट, माइनस।
अभी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, ln a0 अपॉन at इक्वल्स टू kt, a0 अपॉन at इक्वल्स टू kt। अभी मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, kt इक्वल टू ln a0 अपॉन at। ने क्या कर दिया, kt को लेफ्ट साइड में लिखा और ln को राइट में। अभी ln को अगर मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो kt इक्वल्स टू, अगर ln को मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 बाय 80। देखो ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, और अगर मुझे ln को लॉग में कन्वर्ट करना रहे तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से। और फिर लास्ट स्टेप मुझे k फाइंड आउट करना है, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 by 80। ये हमारा इक्वेशन, दिस इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और देखो यहाँ पे क्या है, a0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और 80 का मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। मतलब अगर हम लोग ने रिएक्शन 10 मिनट तक चालू रखा तो 10 मिनट के बाद हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। अगर हमारा रिएक्शन 20 मिनट्स तक चला तो 20 मिनट्स के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। तो इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में कैलकुलेशन कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम। I'll write down the meaning of all the term first. What is A0? A0 is initial concentration of reactant. A0 is initial concentration of reactant. AT is, हमेशा ध्यान में रखना, AT is what? Remaining concentration of reactant at time t। A0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, करेक्ट। और AT का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग, मतलब रिएक्ट हो गया उतना रिएक्ट हो गया, बचा कितना हमारे पास, मतलब t टाइम्स के बाद, मतलब 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद हमारे पास कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। सो AT इज कॉल्ड एज व्हाट, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। T is time, T is time, K is rate कांस्टेंट, K is rate constant। और हमें मालूम है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमने डेरिवेशन जो किया हुआ है, किसके लिए डेरिवेशन किया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया है। तो K का यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कोई बोल सकता है क्या मुझे, K का यूनिट क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। It can be per second, it can be per minute, or it can be per hours। मतलब in short it is what, per time, per time, time raised to -1, time raised to -1 means what, second raised to -1, minute raised to -1 और hours raised to -1, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और ये हमारा इक्वेशन एक हुआ, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब इसके अलग अलग कौन कौन से फॉर्म है वो हमें देखने हैं, और दो फॉर्म अलग अलग फॉर्म है, उस दोनों फॉर्म के बारे में हमें देखना है, दो अलग अलग फॉर्म कौन से रहेंगे।
तो देखो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन स्टार करके रखा था, स्टार, तो मैं भी उससे यूज करूंगा। क्या इक्वेशन था? ln 80 अपॉन a0 इक्वल टू माइनस kt। ln 80 अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt। ये इक्वेशन मैंने यूज कर दिया। अब इक्वेशन में मुझे क्या करना है, मुझे ln कैंसिल करना है। तो ln कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एंटीलॉग ले लो। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में एंटीलॉग लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे ln, तो एंटीलॉग लेने के बाद ln कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 80 अपॉन a0 इक्वल टू e रेस टू माइनस के। जब आप ln रहते हैं और दोनों साइड में एंटीलॉग ले लोगे तो ln कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 80 अपॉन a0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ln का मतलब बेस e है, तो ये e रेस टू माइनस के टी आ जाएगा, e रेस टू माइनस के टी। और फिर बाद में 80 मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू a0, एक मिनट पेन चेंज, a0 e रेस टू माइनस के टी, ये हमारा सेकेंड फॉर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। सो ln 80 इक्वल्स टू a0 e रेस टू माइनस के टी, ये हमारा इंटीग्रेटेड का सेकेंड फॉर्म हुआ। अभी और एक फॉर्म है, लेट a0 बी ए मोल पर डीएम। मतलब a0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। a0 का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, a मोल पर डीएम। लेट x मोल पर डीएम क्यूब reacted during time interval t। तो ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, a था। बाद में t टाइम में कितना रिएक्ट हो गया, x रिएक्ट हो गया, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 80। 80 का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, इनिशियली कितना था, a था, उसमें से कितना रिएक्ट हो गया, x रिएक्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा फिर a माइनस एक्स मोल पर डीएम। तो ये है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x मोल पर डीएम क्यूब रिएक्ट हुआ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। सो 80 मतलब रिमेनिंग कितना आएगा फिर a माइनस एक्स। मतलब अभी हमें क्या करना है, a0 के जगह लिखना है a0 के जगह लिखना है a, और a t के जगह लिखना है a माइनस एक्स। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 upon 80। k equals to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon 80। So k equals to 2.303 upon t log to the base 10 a0. What is a0? A. What is 80? a minus x। तो ये हमारा प्रॉब्लम है।
K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A upon A minus X. A upon A minus X is the, this is the third form. Correct? So equation 1 ये, equation 2 ये, or last equation 3, these are called as what? Integrated rate law equations. So I'll just write on the separate page. So therefore K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT. Your first equation. Second, AT equals to A0 e raised to minus KT. ये हमारा second equation. और third, K equals to 2.303 upon T log to the base 10 A upon A minus X. ये equation 3. So equation 1, 2 and 3 are called different forms of integrated rate law. ये जो हमारे तीन इक्वेशंस है, इक्वेशन 1, 2, 3 आर कॉल्ड एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अलग अलग फॉर्म. हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. इसके ऊपर के न्यूमेरिकल है, तुम्हें मालूम होना चाहिए. A0 का मतलब क्या हो जाएगा? A0 का मतलब हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT का मतलब क्या हो जाएगा? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा AT से मीनिंग सब जगह सेम. यहाँ पे A का मीनिंग क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. X का मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट रिएक्टेड. तो A माइनस X का मीनिंग क्या हो जाएगा? अमाउंट रिमेनिंग, अमाउंट रिएक्ट. तो इसका आगे का पार्ट है, दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन अगर आपको एक बार डेरिवेशन रिवाइज करना है, डेरिवेशन, तो डेरिवेशन एक बार देखो. देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा रिएक्शन था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए A गिव्स यू अ प्रोडक्ट. तो हम लोगों ने क्या लिखा? डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा. रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेस्ट टू 1. वाई A रेस्ट टू 1? बिकॉज उन्होंने मेंशन किया फर्स्ट ऑर्डर रेट. और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? माइनस DA बाई DT. माइनस DA बाई DT मतलब व्हाट? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इक्वल टू, बाद में इस टर्म को रीअरेंज कर दिया. रीअरेंज करने के बाद क्या मिला? माइनस DA अपॉन A इक्वल टू K DT. माइनस DA अपॉन A इक्वल टू K DT माइनस DA अपॉन A. माइनस साइन लेफ्ट से मैं राइट साइड में लेके आया. स्क्वायर ब्रैकेट A का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ओके, concentration of A. Then we have said कि what is A0? A0 is the initial concentration at time t equal to 0. AT is the concentration at time t. बाद में उसका इंटीग्रेशन कर दिया. Integration of dA upon A will be what? ln A. Integration of the dt will be what? T. Then we substitute the value of the final limit and initial limit. ln AT minus ln A0 और यहाँ पे माइनस K T माइनस 0. ln A माइनस ln B को क्या लिख सकते हो? ln A अपॉन B इक्वल टू माइनस KT. बाद में इसका रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल लेने के बाद प्लस विल चेंज टू माइनस. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ln KT. बाद में मैंने ln को log में कन्वर्ट में कर दिया. log में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना था? 2.303 को. और बाद में रीअरेंज कर दिया. K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0 अपॉन 80. और फिर मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया. व्हाट इज A0? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. व्हाट इज AT? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T. K इज द रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का. यूनिट क्या आएगा? पर टाइम. तो पर सेकेंड, पर मिनट्स, पर आवर.
फिर बाद में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का दूसरा फॉर्म लिखा. कैसे दूसरा फॉर्म लिखा? ln a2 upon a0 is equal to minus kt, taking antilog on both the side. 80 upon a0 is equal to e raised to minus kt. So 80 equals to a0 into e raised to minus kt. तीसरा, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को a एज्यूम करोगे, x अमाउंट अगर हमारा रिएक्ट हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाद में x मोल पर dm क्यूब रिएक्ट हो रहा है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा? a माइनस एक्स. रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स आएगा. फिर हमने ये इक्वेशन दिया. सो इसी तरह से these three equations are called as a integrated rate law equation. So equation 1, 2, 3 are called as different forms of integrated rate law. Okay, so we have finished with the rate law, but there is some more part of the rate law that we'll do it in the next lecture. Okay, yes. Anyone want to ask anything? कोणाला काही विचारायचं आहे का? No, sir. ओके.